Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 7 of Technology Management Absorption. Topics to be covered in this sessions are Technology Package and Technological Dependence, Terminology and Concept in the Absorption, Constraint in Technology Absorption, Technology Import in India, Technology Absorption Effects, Management of Technology Absorption, Government initiatives, benefits of the absorptions, and the future thrust for technology absorption. So first of all, technology package and technology dependence. टेक्नोलॉजी आपकी जो पैकेज है या डिपेंडेंस है, नॉर्मली वो डिपेंड करती है आपकी नो हाउ फैक्टर पे. लाइक टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नो हाउ कैन बी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरियाज. लाइक इनमें से कोई भी एरियाज आप पिक कर सकते हैं. प्रोडक्ट डिज़ाइन, नो हाउ फॉर असेंबली, licensing for the use, quality control, supplies of the hardware and the proprietary equipments, use of foreign experts, backup assistance and guarantees, checking up, drawing. So these are certain areas in which we can say that a technology dependence can come. Now, terminology and certain concepts which we are going to use in technology absorptions are, first of all, we have adoption. Adoption of a technology is just a process under which the various features of the technology which is the subject of transfer are suitably modified, changed and altered, but at the same time keeping in view the need of the buyer. So we can say that the need of the buyer of the technology gets crystallized and the supplier make a suitable modification so that the technology being supplied gives the user a comfort level. Second term, that is adaptation. Adaptation is a phase that takes place after technology has been adopted, because एक बार अडॉप्ट कर लिया उसके बाद ही अडॉप्शन करते हैं हम, और इसके अंदर हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मॉडिफिकेशंस करते हैं सो दैट जो भी आपके कंडीशंस हैं उनको आप एक सुटेबल कंडीशन में चेंज कर सकें. नेक्स्ट कम द अब्जॉर्प्शन फेज. टेक्नोलॉजी इज सेट टू बी अब्जॉर्ब्ड इफ इट इज़ फुली अंडरस्टूड. अगर आपको पूरा क्लियर है कि क्यों आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ करें, मीन्स अगर आपको ये पता है कि नो वाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स आपने उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर लिया है. आफ्टर दैट वी हैव ऑप्टिमाइजेशन. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रिलेवेंट फीचर्स ऑफ अ टेक्नोलॉजी, now we can remove the rough edges through research and development phase. Then comes the improvement and upgradation. This particular is the capability of the technology absorption and optimization. अगर absorption और optimization बहुत अच्छे से किया है तो उसके बाद next phase में आपके improvement आते हैं. मीन्स कुछ ऐसे loop holes होंगे जो आप अभी और improve करना चाहते हैं. Like in technology upgradation, we normally lead to the industry efforts in extended know why the capabilities or to a higher range of products or in upscaling the existing process. There are certain constraints related to technology absorption. So basically, improve productivity, quality as well as the reduce cost. जितने भी आपके तीन फैक्टर्स हैं, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड द कॉस्ट, ये तीनों आपके एक हायर एफिशिएंसी की तरफ लीड करते हैं. सो in this particular context, there are certain factors which are important if you want to achieve the high productivity, high quality and the reduced cost, because we are discussing the constraint in technology absorption. और constraint आपके सिर्फ ये तीन ही होते हैं, productivity ज़्यादा करना, quality ज़्यादा देना और at the same time cost आपकी कम होनी चाहिए. So उस टाइम में ये factors आपकी हेल्प करते हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स. मीन जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उसका आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें. ऑप्टिमम मीन्स लगे कम बट मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन वो आपको दे. सेकेंड, मिनिमम इकोनॉमिक स्केल ऑफ प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली व्हेन वी आर डिस्कसिंग इन इंडस्ट्रीज. लाइक जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं अगर कम से कम में हमें मिल जाए देन इट इज़ beneficial for us. And finally, targeting and achieving the international level of performance and operating parameters. So these are certain factors. आपको टारगेट्स पता होने चाहिए, उनको अचीव करना आना चाहिए, मिनिमम इकोनॉमिक स्केल पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट ऑफ अ क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल, एंड फाइनली द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल योर कैपिटल इक्विपमेंट्स. If you are following these all factors, then you can reach the higher productivity, higher quality, and at the same time reduce cost.
but there are certain constraints related to this particular concept. First of all, choice and the use of imported technology. जितनी भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करने वाले हैं उसकी चॉइस कैसे करनी है और उसे यूज़ कैसे करना है, दिस वन इज़ द मेजर कंस्ट्रेंट. सेकेंडली, जो इंडस्ट्री है वो आपको कभी भी एडिक्वेट अटेंशन नहीं देती है. उस केस में एक फॉर्म को यूजुअली अप्रोच करना पड़ता है एक दूसरे के पास ताकि वो एक रिन्यूअल ले पाए उस पुराने एग्रीमेंट का. सो इन दिस इज़ अ मेजर कंस्ट्रेंट. नाउ टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट इन इंडिया. A major part of technology production has been contributed by small as well as the medium enterprise. तो जो इसमें कोर सेक्टर्स होते हैं वो आपके पावर्स, टेलीकॉम्स, सीमेंट्स, ये सब आपके कोर सेक्टर्स हैं. Much of this industrial production has been attributed to import of technology and related equipment. In this, we first have TPS, that is Technology Policy Statement. Technology Policy Statement means जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसे हम बहुत सारे फैक्टर्स जो साइमल्टेनियसली फैक्टर्स होते हैं हम उसको कंसीडर करते हैं अपनी इंडस्ट्रियल की ग्रोथ में. पॉलिसी स्टेटमेंट बनती है और जो वो पॉलिसी स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसका मेजर स्ट्रेस जो होता है वो होता है प्रोडक्टिविटी की इंपॉर्टेंस पे और उसके एब्जॉर्प्शन पे. सो टीपीएस के अंदर इसी रूल को फॉलो किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये टीपीएस है लाइक इन 1983 इसको रिकॉग्नाइज किया गया था लाइक अ enormous presence of imported technology in our country, and therefore we can say that this is laid down as a one of the objective, the efficient objective of import technology appropriate to national priority as well as the resources. Trends in collaboration and research and development. So acquisition of technology is also prominent in the core area like shipping, equipments. So in the strong presence of the major foreign companies around the world, we can say that the electrical equipments, electronic, transport जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा important है वो और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और भी ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपकी फॉरेन कंपनीज पे एज कम्पेयर टू अदर. So a study is carried out of R&D payment and technology payment in Japan and USA. In comparison to India, indicates that the industrial R&D expenditure is very small in India as we compare with Japan or USA. So dependence on foreign technology is least in USA, while Japanese have spent a 7-fold in R&D. Technology absorption efforts. What are the efforts which are imparted by Indian government for this technology absorption? So these are, first of all, अगर हम इंडियन एक्सपीरियंस को देखें तो उसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसको हम इस कंस्ट्रेंट के अंदर लेके आए हैं. लाइक आपके लोअर स्केल्स के जितने प्रोडक्शंस हैं एज कम्पेयर टू योर इंडस्ट्रियल लेवल्स. सेकेंड, लैक ऑफ अटेंशन टू एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी. कॉन्टीन्यूअस एक्सेस टू कोलैबोरेटर्स ऑन अ नॉमिनल पेमेंट. मीन्स एक्सेस तो देना है बट कॉन्टीन्यूअस एक्सेस तो दिया बट आपने पेमेंट बहुत नॉमिनल रखी है, अटेंशन बहुत कम देते हैं हम. सो दीज आर सर्टेन इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये वो ऐसे कंस्ट्रेंट हैं जिनकी वजह से हम एब्जॉर्प्शन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाए. सो फॉर रिमूविंग दैट कंस्ट्रेंट देयर आर सर्टेन सजेस्टेड मेजर्स आर लाइक unit should have their own knowledge or their own technology policy for its acquisition as well as absorption. मीन्स हर एक यूनिट की अपनी खुद की एक एब्जॉर्प्शन पॉलिसी होनी चाहिए चाहे फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए हो या शॉर्ट टर्म के लिए. अनदर मेजर विच वी कैन परफॉर्म आर R&D पर्सनस फ्रॉम इन हाउस और नेशनल लेबोरेटरीज should be involved in the transfer of technology from when we are transferred from conceptual stage to itself. Another measures are availability of integrous material is also important. Tax benefits. Your R&D expenditure should generally from 5 to 10% of the annual turnover. Availability of your this material like your high temperature and resistant alloys should be very poor. A periodic review meeting of R&D chief of the industrial units to discuss the technology absorption efforts which may be organized. Now, area needing attention means if we are going to manage our technology absorption, then what are the areas on which we should concern or our industry should concentrate. So in this particular list, we first have the accelerated indigestions and improvement of raw material. जितने भी आपके रॉ मटेरियल से रिलेटेड टर्म्स होती हैं, आपके R&D एफर्ट्स होते हैं,
उन सब के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहिए. सेकेंड एरिया इज़ द बेसिक इन्वेस्टिगेशन projects majorly in research, designs, engineering, etc. Analysis and improvement of design, demonstration of higher and improved range of products and equipment. So basically these are the areas which Indian industry should concentrate if they want to fill the technology gap between the technology absorption and the technology upgradation. Now the technology absorption projects can be organized in these two factors. Firstly the individual or unit based, means वो सारे projects जो एक unit या individual कर रहा है. Second one is collaborative, means a club. इसके अंदर हम normally manufacturers, national researchers, laboratories, institutes, ये सब आपके examples जिसमें आप collaborative होके work करते हैं. Now what are the skills and facilities for technology absorption? So when we are discussing skills and facilities, so in this the एरियाज आर यूज़ ऑफ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस इंजीनियर्स, स्किल्स को इम्प्रूव करना ट्रेनिंग कंडक्ट करके, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन करके, मोरोवर अपडेशंस करना और आर्ग्यूमेंटिंग करना एग्जिस्टिंग R&D फैसिलिटीज़ की. यूज़र इन्वॉल्वमेंट इन एब्जॉर्प्शन. सो बेसिकली यूज़र इन्वॉल्वमेंट मीन्स जो आपके ये लार्ज कंपनीज होती हैं उन्हें इन्वॉल्व होना चाहिए एब्जॉर्प्शन फैक्टर के अंदर इफ़ वी वांट टू प्रमोट आर टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन. नाउ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. सो इन गवर्नमेंट इनिशिएटिव वी फर्स्ट हैव टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन एंड अडॉप्शन स्कीम लाइक TAAS. सो टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन एंड अडॉप्शन स्कीम ये जो है ये गवर्नमेंट ने इनिशिएट करा था जस्ट लाइक अ पायलट स्कीम जो कि 7th प्लान में इनिशिएट किया गया था. इसका बेसिक एम जो था वो था स्टिमुलेट करना और एक्सेलरेट करना इंडियन इंडस्ट्री का एफर्ट इन टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन एज वेल एज अपग्रेडेशन. सेकेंड वन इज योर टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन स्टडीज. टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन स्टडीज़ के अंदर ये हमने यूज़ की थी फॉर जस्ट एक्सेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन सम मेजर सेक्टर्स लाइक योर फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इन सब एरियाज़ के अंदर परफॉर्मेंस को एक्सेस करने के लिए हमने ये स्ट्रैटेजी या ये एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने किया था. इसके बाद भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए गए लाइक आपके IDBI, ICICI, IFCI, इन सब ने इंट्रोड्यूस किए कुछ लोन स्कीम्स जो कि आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं. बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन. टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शंस के बेनिफिट्स आपके होते हैं रिपीटेड कोलैबोरेशन होता है सेम प्रोडक्ट्स का, सेम प्रोसेस का, जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमने एब्जॉर्प्शन किया. बिकॉज एब्जॉर्प्शन करने से प्रीवियस में से जो बेस्ट है वो तो हम एब्जॉर्ब कर ही लेते हैं, तो बार बार उसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा. एक्विजन फॉर फर्दर टेक्नोलॉजी बिकम्स सिलेक्टिवली, बिकॉज जो इसकी ज़रूरत है वो ही चीज़ हम सिलेक्ट करेंगे, बाकी रेस्ट हम छोड़ देते हैं. एबिलिटी इज़ टू डेवलप टू एन अनपैकेज टेक्नोलॉजी, बिकॉज आधा पार्ट हमने प्रीवियस से एब्जॉर्व किया है और 1-2 न्यू कंपोनेंट्स हमने न्यू इंक्लूड किया है. सो मुझे एक पूरा पैकेज नहीं डेवलप करना पड़ा और एक अनपैकेज टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करके मैंने अपने वर्क आगे फुलफिल किया. फ्यूचर थ्रस्ट फॉर टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन. सो like industry should attempt to obtain the best available technology. These are certain future thrusts जो कि एक developing country को like in India करने चाहिए अगर उसे टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन को एक्सेप्ट करना है. तो सबसे पहला जो अटैम्प्ट है वो इंडस्ट्री को ही करना होगा कि वो जितनी भी बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है जो कि आपके इंडस्ट्रियल ट्रेंड के बहुत ज़्यादा क्लोज है उसे अटैम्प्ट करे, प्रोवाइड करे R&D हर एक स्टेज पे, स्पेशली ऑन प्रोजेक्ट प्लानिंग. स्पीड में लेके आए इंडाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च फैसिलिटीज़ को यूज़ करें, यूजर्स को, सप्लायर्स को, इन सब की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एब्जॉर्प्शन एक्सरसाइज में. एक्वायरिंग लीस्ट इंफॉर्मेशन ऑन टेक्नोलॉजीज एंड मोर ओवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर सीनियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सन्स इन नेगोशिएशन एज वेल एज द एक्विजिशन ऑफ द टेक्नोलॉजी. सो दीज आर सर्टेन factors or measures like a future thrust for a technology absorption in a developing country. Do it yourself. Firstly, you need to define certain initiatives which a government has taken to promote the technology absorption, and secondly, the benefits which you think which could occur from effective absorption of imported technology. So
जो वो बेनिफिट्स जो आपको लगता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन करते हैं, बहुत इफेक्टिवली करते हैं, तो हमें मिलेंगे, वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं. दिस इज़ फॉर ऑल दिस सेशन. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग.